Hello guys, welcome back to Algorina. So yeah, in that today's video, we'll just discuss the we'll discuss a topic जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, especially that the college students who are pursuing their graduation right now. ठीक है. सो डजेंट मैटर कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल हो या फिर अभी किसी इंडस्ट्री में अभी राइट नाउ अभी स्टार्ट ही है, रिसेंट ग्रेजुएट है. ठीक है, ये वीडियो सबके लिए होने वाला है, मैं सबके बेहाफ से बातें करूँगा. So yeah, so let's start. So the topic is the code forces versus lead code. So if you are in a college, this is the most important decision you will ever make in your coding journey, right? And if you are a recent graduate or professional, then yours too. So yeah, because pick the wrong one at the wrong time, and you will waste months grinding with no results. So today in this video, I'll give you the ultimate year-by-year roadmap or the detailed discussion based on what actually works in college, and by the end you will know exactly when to do code forces and when to switch to lead code and how to balance both. No fluff, just a clear plan. Okay. So yeah, let's get started without wasting time. So yeah, the big question is which is better in college. So see, एक सच है कि code forces and lead code train different muscles. See, the code forces trains your speed, edge cases handling capability, and the contest pressure. And others lead codes helps you to prepare for the interviews, pattern understanding, and just clean problem solving. So both are powerful, but using them at the wrong stage is like training for a marathon by lifting weights. Seriously. And let's fix that. What a college roadmap. So this is the difference that I just covered. That the code forces, it helps you to increase your speed of the thinking of the code, and just help you to handle the tricky edge cases and just contest mindset. Okay, otherwise, and then lead code helps you to prepare for the interview patterns, helps you to read the questions for the interview purpose especially, and to help you to understand the data structures, algorithm knowledge, and just discuss the driven language discussion driven learning होती है इसमें. Then start करते हैं for the college students who are right now in the first year of their college. So see, at the first year तुम्हारा goal रहना चाहिए कि learn the basics. ठीक है, यू हैव इनफ टाइम. एकदम रश करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक फर्स्ट ईयर में ही कोड फोर्सेस पे उतनी रेटिंग हो जाए एंड देन कोड शेप पे 5 स्टार 6 स्टार हो जाए. कुछ नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में, तो पैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं सेकंड ईयर में कुछ मिलेगा. अगर तुम इस माइंडसेट के साथ है या फिर कोई तुमको ये बोल रहा है कि लाइक 3 महीने में इतना सा हो जाएगा, 3 महीने में तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर बन जाओगे, रेड कोडर बन जाओगे, या 3 महीने में तुम्हें जॉब रेडी बना देंगे, भाई सब फेक है, कुछ भी नहीं हो सकता. और एक्चुअल में यही है कि अगर तुम्हें जेन्युइन में कोई स्किल सीखनी है ना, कोई भी डजेंट मैटर कि ये कोई लैंग्वेज सीखना है या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखनी है या कोई डेवलपमेंट सीखना है, भाई जितना हो सके टाइम दो. जितना ज़्यादा तुम उस चीज़ को टाइम दोगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ तुम्हारे मन में रहेगी. ठीक है. एक होता है ना कि देर इज टू गाय, द फर्स्ट वन इज द फ्रेशर जो अभी इंटरव्यू देने आया है, बस इतना कि 3 घंटे का कोई वन शॉट वीडियो देख के, एंड द अदर गाय जो उस पर पिछले 4 या 5 महीने से काम कर रहे हैं. अब तुम लोग अच्छे से जानते हो कि किसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन तो दोनों ही करके आए हैं, लेकिन डीप नॉलेज किसके पास होगी. तो वही चीज़ काम आती है एट लास्ट. तो कोई भी स्किल सीख रहे हो तो उसको टाइम दो, अच्छा टाइम दो, अच्छा टाइम दे के सीखो. सो अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए किसी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज पिक करो. डजंट मैटर इज C++ हो, जावा और पाइथन, सारी अच्छी हैं, सारी ही काम आती है. ठीक है. सो उनका सिंटैक्स देखो. अगर C++ चूज़ कर रहे हो तो STL पढ़ो, और जावा चूज़ कर रहे हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स पढ़ो, एंड रिकर्जन, डीबगिंग, कॉम्प्लेक्सिटी, इन चीज़ों पे ध्यान दो. ठीक है. तुम्हारा मेन फोकस इन चीज़ों में होना चाहिए सबसे ज़्यादा. देन लीड कोड इजी क्वेश्चंस करो. जब तुम्हें चीज़ें समझ में आने लग रही है ना, लाइक देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन लीड कोड टू जिनमें बहुत ऐसा डेटा स्ट्रक्चर डीपली यूज़ नहीं होता. बेसिक STL से, रिकर्जन से, नॉर्मल कोडिंग सिंटैक्स वगैरह ही यूज़ होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, बस इतने ऐसे क्वेश्चंस भी है, इजी क्वेश्चंस. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करो, पैटर्न देखो कि ऐसे इजी क्वेश्चंस कैसे होते हैं. Then, if you want, then you can choose to the add coder ABC questions, and code forces का डिप तरीका सबसे AB क्वेश्चन सबसे बेसिक वाले. ये जस्ट इसलिए है सो दैट कि तुम प्लेटफॉर्म से फैमिलियर होते चलो. ठीक है. मेन फोकस अपना रखना किस पे, सीखने पे, सिंटैक्स वगैरह सीखने पे, बेसिक सीखने पे, लैंग्वेज कैसे वर्क कर रही है, उसका आर्किटेक्चर क्या है,
एंड देन लीड कोड की सबसे इजी क्वेश्चंस पर उठाना एंड देन देखना कि उनमें क्या पैटर्न्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, कैसे टेस्ट केस होता है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है, एंड देन फिर तुम कैसे उसको कोड करते हो, कैसे ड्राई रन करते हो, इन चीज़ों में फोकस करो। क्योंकि जब तुम्हारे ईयर बढ़ते हुए जाएंगे ना तो तुम बेसिक चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ठीक है, तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि दैट एट द लास्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड दैट तुम्हारे ऑलमोस्ट लाइक 150, दीज आर द नंबर्स आई जस्ट गेव यू फॉर द लाइक जस्ट अ सजेशन। ठीक है, जितने हो पाए अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, नंबर्स के पीछे नहीं भागना है बेसिकली। 150, 180 जितने भी क्वेश्चंस हो पाते हैं उतने क्वेश्चंस करो, जस्ट इजी क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ हो जाए तो मीडियम क्वेश्चंस भी वरना ठीक है। एंड कॉन्टेस्ट वगैरह बीच बीच में दो, सो दैट कि लाइक 5 से 8 कॉन्टेस्ट दो रहे हो तुम फर्स्ट ईयर में, दैट्स इट इनफ। तुम्हें बस नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्टेस्ट कैसे देते हैं, क्या होता है, कैसे अंडर प्रेशर टाइम के साथ काम किया जाता है। ठीक है, सो डोंट चेज रेटिंग इन दिस ईयर, जस्ट चेज द लर्निंग। एंड एडिटोरियल्स वगैरह जो है वो पढ़ो, एडिटोरियल्स बहुत काम आएंगे। और if you think that code forces is for the first year, then I'll explain in a minute that why it's actually second year awards onwards. Okay, जहाँ पे वो तुमको एक्चुअल में हेल्प करेगी और शाइन करेगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ईयर। सो सेकंड ईयर में तुम्हारा बेसिक गोल होना चाहिए कि कॉम्पिटेटिव रिफ्लेक्सेस को बिल्ड करना। ठीक है, वो कैसे होगा कि अब सेकंड ईयर में तुम्हारा मेन जो फोकस है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए और सॉल्विंग अंडर स्ट्रेस। अब ये कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है, जिसमें तुम्हारा जो है ना सेकंड ईयर में तुम लोगों को मेन फोकस किस पे रखना है, जस्ट लीड कोड के क्वेश्चंस पे, मीडियम क्वेश्चंस पे। ठीक है, इजी तो है ही है लीड कोड के, इजी मीडियम क्वेश्चंस पे, स्पेशली मीडियम क्वेश्चंस पे, एंड कोड फोर्सेस के div 3 और div 2 पे। ठीक है, जो कि हर वीक होते हैं, और खास करके एजुकेशन राउंड्स पे कोड फोर्सेस के एजुकेशनल राउंड्स पे होते हैं कॉन्टेस्ट, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं आते हैं जो एज अ फ्रेशर और लाइक सेकेंड ईयर गाय जिसके पास बेस नॉलेज है डीएसए की वो ना कर पाए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तुम ए करोगे, लास्ट सबसे वर्स्ट यही तो है ना कि तुम एक करोगे नहीं तो एक भी नहीं करोगे। एटलीस्ट तुम्हें कोड फोर्सेस पर जाके कॉन्टेस्ट कैसे देना है, अंडर टाइम प्रेशर में कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, चीज़ें समझ में तो आएंगी ना। तुम एक कॉन्टेस्ट नहीं दोगे, दो नहीं दोगे, चार नहीं दोगे, पाँच नहीं दे पाओगे, कम से कम 6 7 8 बार ए क्वेश्चन करोगे, बी करोगे, चिल रहो, सेकंड ईयर है तुम्हारा। ठीक है, एंड लीड कोड के मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ये तुम्हें इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। फॉर द सेकंड ईयर गाइस, तुम लोग मेनली फोकस करना कि अब तुम्हारा सेकंड ईयर में मेन फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोड फोर्सेस पर, एंड 30% होना चाहिए तुम्हारे लीड कोड पे। क्योंकि 30% लीड कोड इसलिए है क्योंकि द नेक्स्ट ईयर विल बी योर थर्ड ईयर, जहाँ पे इंटर्नशिप सीजन होता है। ठीक है, तो अगर तुम एकदम से लीड कोड छोड़ दोगे ना और फिर थर्ड ईयर में स्टार्ट करोगे तो फिर वो तुमको स्क्रैच से करना पड़ेगा, सब भूल जाओगे फर्स्ट ईयर का किया हुआ। तो यहाँ पे फ्लो बनाए रखने के लिए 30% करना है। ठीक है, वो 150 से 200 जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिखे हुए थे, डजेंट मैटर कि नंबर्स, जस्ट ऐसा कि यहाँ पे तुमने इंक्रीज कर देना, जस्ट फ्लो बने रहना चाहिए। अगर कभी किसी दिन मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर किसी दिन तुम लोग नहीं कर पा रहे हो ना कोई नया क्वेश्चन सॉल्व, लाइक कोई टाइम नहीं है या फिर कुछ भी, जो तुमने पिछले दिन सॉल्व किया ना उसको जाके रिवाइज कर लो, देख लो कि कैसे किया है, क्या किया है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ो एंड देन तुम्हारे मन में अपना थॉट आ जाएगा, एंड देन तुम्हारे कोड का भी अपने मन में आ जाएगा कि मैंने ऐसे कोड किया था। दैट्स इनफ, वो भी प्रैक्टिस में ही काउंट होता है। सेकंड 70% फोकस रखना है कोड फोर्सेस पे, क्योंकि इस ईयर में तुम जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस रखोगे ना वो तुम्हारे काम आएगी। सी थर्ड ईयर में तुम लोग मेनली फोकस अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रखोगे ना तो इंटरव्यूज़ में लैग कर जाओगे, क्योंकि इंटरव्यूअर्स हमेशा लीड कोड क्वेश्चन पूछता है 90%। और फर्स्ट ईयर में मैं तुम्हें कोड फोर्सेस इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुम्हें आते ही से तो कोड फोर्सेस मूव करा देता ना तो फिर नहीं हो पाता, एकदम से तुम लोग डिमोटिवेट हो जाते कि लाइक ये कैसे होगा। तो फर्स्ट ईयर इज़ फॉर जस्ट लर्निंग, चीज़ देखो, चीज़ों को सीखो। एंड सेकेंड ईयर इज़ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग, जो स्टोरी वाइज क्वेश्चंस आते हैं ना उनको पढ़ो। जैसे तुमने फर्स्ट ईयर में जो इजी क्वेश्चन थे ना डेटा स्ट्रक्चर्स के या फिर नॉर्मल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो तो तुमने वो सॉल्व किए। अब तुम सेकंड ईयर में आ गए, अब यहाँ पे तुम्हें स्टोरी वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें स्टोरीज दे रखी है, देन यू हैव टू थिंक कि कैसे क्या हो रहा है, एंड देन तुम्हें कैसे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है या फिर बिना डेटा स्ट्रक्चर करना है तो फिर मैथमेटिक्स कौन से फॉर्मूले लगेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड होनी चाहिए, ये है मेन फोकस। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कॉन्टेस्ट वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं ना कोड फोर्सेस पे भी और लीड कोड पे भी। तो यहाँ पे कोशिश करना है कि तुम्हारी कोड फोर्सेस रेटिंग लाइक 1400 या फिर अराउंड इतना हो जाए, 1400 तो मिनिमम हो ही जाए, इतना ट्राई करना। ठीक है, एंड कंटिन्यूसली देना, इट्स इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है 1400 रेटिंग होना, अगर तुम एक साल पूरा लाइक कोड फोर्सेस को दे रहे हो।
और नॉट ओनली द कोड फोर्सेज, लाइक अदर चीज़ें भी, लेकिन कोड फोर्सेज तो तुम देखो कॉन्टेस्ट वीक में एक दिन होता है, एक दिन 2 दिन ऐसे होता है। ठीक है, अगर तुम डेली का कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो देन 1 2 3 4 5 है, किसी तो को कॉन्टेस्ट में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करोगे ना, हो जाएगी रेटिंग अच्छी। ठीक है। और हाँ, इस वाले सेकंड ईयर गाइस को जो मेरी प्रो टिप है वो ये है कि अपसॉल्व इज़ ग्रेटर देन रेटिंग। ठीक है, तो जब कॉन्टेस्ट एंड हो जाए ना, तो आ, उन चीज़ों को दिमाग में रखना जो तुमने मिस कर दिया। ठीक है, जैसे तुमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो तुमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, या फिर तुमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो नहीं हो पाया, तो कॉन्टेस्ट एंड होने के बाद ऐसा नहीं है कि चलो गया अब नया क्वेश्चन नया कॉन्टेस्ट देखेंगे। जो क्वेश्चन थे ना उसमें प्रीवियस कॉन्टेस्ट में उनको जो अटेम्प्ट करो, देखो 1 दिन के बाद या 1.5 दिन के बाद आई थिंक कोड फोर्सेस बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना उन सबके जो आंसर्स हैं, जो सॉल्यूशन थे उस क्वेश्चन के लिए वो लाइव कर देता है। तुम लोग वहाँ जाके देख सकते हो दूसरों ने क्या यूज़ किया है, चैट जीपीटी की हेल्प से, या फिर मैं अपने चैनल पे डेली हर कॉन्टेस्ट का मतलब सॉल्यूशंस लेके आता हूँ क्वेश्चंस के, तुम लोग वहाँ जाके देख सकते हो। उसमें मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता हूँ एंड देन क्वेश्चन को कोड भी करता हूँ और समझाता भी हूँ ट्राई रन करके। ठीक है, तुम लोग वो लोग भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है। सो अब हियर इज अ ट्विस्ट दैट जस्ट व्हेन योर सी एफ ग्राफ इज राइजिंग, you'll need to flip the balance completely before internship season। क्योंकि इस सीज़न में जब तुम एकदम से कोड फोर्सेस पे वो करोगे ना, लाइक एकदम से रिलाई हो जाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग और वाली चीज़ पे, आप ट्विस्ट ये आएगा कि आप नेक्स्ट जो ईयर है ना वो तुम्हारा इंटर्नशिप सीजन होगा, थर्ड ईयर। ठीक है, अब वहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट ईयर में तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में तुम्हारा मेन फोकस होगा लीड कोड। देखो मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा, क्योंकि चीज़ें दोनों काम आएंगी। कोड फोर्सेस जैसे क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन कोड फोर्सेस में या कॉन्टेस्ट में होते हैं ना, वो तुम्हारे कंपनी से ओए में होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अच्छी कंपनीज़ की। अच्छी कंपनीज़ का ओएस में वही क्वेश्चंस होता है, वही मतलब वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं जिनमें तुम देख लेना नॉर्मल कंपनीज़ को ओएस दे के देख लेना, तुम्हारे सीनियर्स अगर कोई ओएस दे रहे हैं किसी कंपनी के, तो तुम उसमें देख लेना, तुम्हें जैसे क्वेश्चंस कोड फोर्सेस में मिल रहे हैं तुम्हें वैसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही उसमें मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने सेकंड ईयर में तुमको मेनली फोकस कोड फोर्सेस पे रखने को बोला था। ठीक है। सो इट्स अ थर्ड ईयर दैट योर प्लेसमेंट प्री इंटर्नशिप सीजन है, तो इस पर तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि ओएस को कैसे क्रैक करें और इंटरव्यूज़ को। क्योंकि अब जो तुम्हारा जस्ट नेक्स्ट ईयर होगा ना वो तुम्हारा मेनली प्लेसमेंट सीजन होगा, तो तुमको अभी से प्रिपरेशन करनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना वो है, तो तुम जितना जल्दी और जितना अच्छे से प्रिपेयर करो उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस ईयर में तुम्हारा मेन फोकस होगा लीड कोड मीडियम हार्ड क्वेश्चंस पे, जिनमें इंक्लूड होंगे ग्राफ्स, डीपी, ग्रिडी क्वेश्चंस और इंटरवल्स। ठीक है, ये चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक मुझे तो इतने की जॉब टारगेट करनी है तो इतने में तो नहीं पूछता है। यू डोंट नो कि इंटरव्यू का कब दिमाग से लग जाए और वो तुमसे क्या पूछ ले। तो तुम्हें एक्टिव प्रिपेयर करके रखना है अच्छे से सब। ठीक है, और अपने आप को इतना लो मत बनाना कि लाइक तुम्हें इतने कम की ही जॉब्स टारगेट करनी है जिसमें ये सब नहीं पूछता है। लाइक क्या नॉर्मल टॉपिक्स ही तो है, तुमको 10 नॉर्मल टॉपिक में तुमको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने सपोज करो प्रैक्टिस करने के लिए, ग्राफ डीपी ग्रीडी में तुमको 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, कम से कम तुम्हें वो टॉपिक आएगा, तुम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें प्री इंटर्नशिप सीजन जिस थर्ड ईयर में जो जितना भी ट्यूशन तुम कर रहे हो ना क्वेश्चन सॉल्व वगैरह, उसमें तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि तुमको ना टाइमर सेट करके रखना है। ठीक है, लीड कोड पे या फिर कहीं पे भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तो जस्ट टाइमर सेट करके रखो कि तुमने कितनी देर में उस क्वेश्चन को पढ़ा, देन उसको टाइमर को नोट करो। लाइक जैसे तुमने कोई क्वेश्चन ओपन किया एंड देन क्वेश्चन ओपन करने के बाद तुमने जस्ट यहाँ पे टाइमर को ऑन किया एंड देन फिर तुमने क्वेश्चन को रीड किया। क्वेश्चन रीड करना, कोडिंग क्वेश्चन को रीड करना भी ना एक ट्रिक है कि तुम कितनी देर में रीड कर रहे हो, कैसे रीड कर रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा एक ही बार में तुमसे सबसे बेस्ट हो जाना चाहिए, टाइम लगाओ आराम से, 2 3 बार 4 बार पढ़ो। हर बार जब तुम पढ़ोगे ना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तुमको नया देखने को मिलेगा जो तुम्हें क्वेश्चन को ईजी बना देगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसको 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार भी हो सके पढ़ो, बस टाइमर ऑन करके पढ़ो धीरे धीरे। और जो भी टाइमर तुम पढ़ जो क्वेश्चन कर रहे हो ना साइड में नोटबुक रखो, उस टाइमर को नोट करते चलो कि मैंने ये क्वेश्चन इतनी देर में रीड किया। देन फिर टाइमर को पॉज कर दो, नोट करने के बाद फिर दोबारा टाइमर को ऑन करो, फिर क्वेश्चन को अप्रोच करना शुरू करो कि कैसे करना है। जितनी देर में तुम उसको अप्रोच कर पाते हो देन पॉज करो एंड देन लिखो फिर इतनी देर में मैंने अप्रोच किया देन फिर कोड। मैं गारंटी देता हूँ ये जो तुम्हारी वो है ना ओएस में सॉल्व करने वाली चीज़ और इंटरव्यू में सॉल्व, क्योंकि इंटरव्यूअर लिमिटेड टाइम का होता है, 45 मिनट्स 1 आवर का होता है। तो उसमें अगर तुमको 2 इंटरव्यू क्वेश्चन 2 कोडिंग क्वेश्चन भी देगा तो वो भी लाइक तुमको टाइमली सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये टाइमर जरूरी है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़
तुम्हें प्री इंटर्नशिप सीजन में मॉक इंटरव्यूज़ भी देना। देर आर लॉट ऑफ साइट्स जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। नहीं होते हैं तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू आर इन द थर्ड ईयर सीजन राइट नाउ, आई विल अरेंज यू, ठीक है, अरेंज फॉर यू कि बिकॉज आई एम वर्किंग एज एस टी वन एज इन एट इंटविट एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन द JP Morgans एंड ऑल्सो द 2 internships ऑफ एक्सपीरियंस टू। सो आई नो लाइक मैं बहुत अच्छे से इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ तुम्हें काफ़ी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू रियली वांट इट, वरना फिर मैं तुमको कुछ साइट भी सजेस्ट कर दूंगा जहाँ पे फ्री इंटरव्यूज़ होते हैं, लाइक कुछ पेड इंटरव्यूज़ भी होते हैं, मॉक इंटरव्यूज़। वो तुमको काफ़ी हेल्प करेंगे एंड जेनुअली बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कोड फोर्सेस में जस्ट ऐसा कि कोड फोर्सेस का कि सिर्फ कॉन्टेस्ट वगैरह पे फोकस रखना इस ईयर में। जब भी कॉन्टेस्ट हो रहा है कोड फोर्सेस पे जस्ट वो अटैम्प्ट कर लिया, दैट्स इट। नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीछे मत भागना इसमें। इसमें तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए लीड कोड पे, इंटरव्यू क्वेश्चंस। लीड कोड तो मैं प्रिपेयर करता है इंटरव्यू हैंडल करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं लीड कोड बेस्ड। तो इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस करना है। टारगेट रखना कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस तुम लीड कोड पे प्रैक्टिस कर पाओ, और एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 या फिर 6 से 8 जितने भी हो सके उतने, मतलब मॉक इंटरव्यूज़ दो। तुम जिस ईयर में जितने मॉक इंटरव्यूज़ दोगे ना वो तुम्हें हेल्प करेंगे इंटर्नशिप सीजन में भी और प्लेसमेंट में भी, ठीक है। क्योंकि देखो यार मार्केट थोड़ा ऐसा ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता अगर तुम किसी Tier 3 कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो तो कि हर दूसरे दिन तुमको इंटरव्यू कॉल आए, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर करना कि जो भी पहली कुछ कंपनीज आ रही है अच्छी उन्हीं में तुम्हारा इंटरव्यू सबसे बेस्ट हो। ऐसा नहीं हो कि तुम 10 से 12 कंपनीज में तो इंटरव्यू देना सीख रहे हो पहले, और फिर उसके बाद फिर ज़्यादा अच्छी कंपनीज मिलती नहीं है Tier 3 में, स्पेशली जो कंपनी स्टार्टिंग में आती है ना, वही बढ़िया होती है, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यूज़ देना वो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। देन the tip for the third year guys is that don't just solve, explain your solution out loud। जब भी तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो जस्ट ऐसा मानो कि तुम किसी को सिखा रहे हो, ठीक है, एज लाइक ए टीचर। तो उस क्वेश्चन को बोल बोल के पढ़ो, बोल के पढ़ो, बोल के रीड करो, बोल के एक्सप्लेन करो खुद को, देन बोल के ही उसकी अप्रोच निकालो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें हेल्प करेंगी इंटरव्यू में। कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर दिस इंटरव्यूज़, ठीक है। इंटरव्यूअर वो तुम्हें देखेगा, उसका कोडिंग क्वेश्चन देने का पीछे मेन रीज़न ये नहीं होता कि तुम उसे सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, उसका मेन रीज़न ये होता है कि तुम कितना सोच पा रहे हो, क्योंकि बिग MNCs जो है ना वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले बंदे ही ढूंढती हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बंदा उनको वो तब नहीं मिलेगा जब तुम क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर दो, वो तब मिलेगा उनको जब उन्हें एक्चुअल में ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये सोच पा रहा है, इसको आता है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, इसको आता है कि पढ़ने के बाद कैसे अप्रोच करना है, इसको आता है कि ब्रूट फोर्स कैसा है, देन ऑप्टिमल कैसे बनाना है, क्या चीज़ें देख के उसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, इसको आता है कि टाइम कांस्टेंट कितना मैटर करता है। तो वो चीज़ें जब तुम बोल बोल के उसको एक्सप्लेन करके जब तुम खुद करोगे ना, तो दैट्स योर पॉइंट, वो उसको हिट करेगा। तो जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ट्राई करो कि धीरे धीरे या फिर जोर से कुछ भी है, जस्ट उसको बोल बोल के करो, ठीक है। देन द लास्ट थिंग इज़ फॉर द फाइनल ईयर गाइस, देखो यार तुम लोगों के लिए सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि अब तुम्हारे पास ना इसके आगे सीधा फिर ऑफ कैंपस बचता है अगर तुम यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो। एंड देखो मैं भी Tier 3 से ही हूँ, मैंने भी Tier 3 से 2 इंटर्नशिप निकाली है, ठीक है। और कॉलेज से मेरा कुछ भी नहीं लेना देना नहीं था, लाइक कॉलेज से मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऑफ कैंपस ही मैंने JP Morgans में किया था, एंड ऑफ कैंपस ही अभी मैं इंटुइट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलेज से कोई लेना देना नहीं था मेरा, क्योंकि मेरा लाइक कुछ है था ऐसा इशू जो कॉलेज में मेरे को प्लेसमेंट नहीं दिला पाया। तो देखो इस ईयर मैं तुम लोगों को एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ कि इसमें तुम्हारा मेन फोकस रहना चाहिए तुम्हारे बी स्पॉट्स पे, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है ना कि लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। उन लोगों को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, DBMS ऊप्स ओएस वगैरह नेटवर्किंग बिल्कुल लाइटली मत लेना। यू डोंट नो कि इंटरव्यूअर कब तुमसे क्या पूछ ले, और वो इतना तो एक्सपेक्ट करेगा कि अगर इसको कुछ नहीं आता तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स तो आते होंगे, इफ़ ही और शी बिलोंग्स टू द कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच, ठीक है। अगर तुम वहाँ भी नहीं बता पाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और इसके अलावा भी अपने वीक स्पॉट्स जहाँ भी हैं कोडिंग में या अपने रेज्यूमे में, तो उन सबको ढंग से देखना। देन फिर फाइनल प्रिपरेशन चालू करना जिसमें अपनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेली, और तुम जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से पॉलिशिंग करके करना। अपनी चीज़ों को फोकस करो। रिज्यूमे तुम्हारे इंटरव्यू के सामने है, इंटरव्यू तुमको बोलेगा कि लाइक रिज्यूमे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो जो तुमने बनाया है, तो जस्ट पहले से प्रिपेयर करके रखो कि कैसे अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अगर तुम्हें इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो कैसे एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाता है, तुमने जो अचीवमेंट्स लिखे हैं उनको उनको कैसे तुम्हें एक्सप्रेस करना है इंटरव्यूअर को, सो दैट कि वो इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। उन चीज़ों पर फोकस करना है। देन द थिंग इज़
लीड कोड पे बहुत सारी चीज़ें मेन फोकस रखना है, 80% जो है फोकस वो लीड कोड पे रखना है, जिसमें टॉपिक ड्रिल्स होंगे। जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको नोट करो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम एक नोटबुक में। देन हर एक क्वेश्चन का ना एक्चुअली में 1 से 2 ऐसा डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करो। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि इंटरव्यू तुमको कोई क्वेश्चन दे रहा है ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि लाइक अगर जेन्युइन गाय है, जेन्युइन क्या मतलब डिपेंड्स ऑन द गाय। तो पहले लोग ब्रूट फोर्स बोलता है, देन ब्रूट फोर्स के बाद फिर इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि लाइक कैन यू ऑप्टिमाइज दिस, कैन यू मोर ऑप्टिमाइज दिस। ठीक है, तो 1 से 2 अप्रोचेस तो, या फिर वो तुमको ऑप्टिमाइज़ करने को नहीं तो फिर यही बोल देगा कि क्या आप इसको किसी और अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक कोई और डेटा स्ट्रक्चर या फिर कोई और चीज़ है जो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, स्पेशली जो वो क्वेश्चन जो कंपनीज़ में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लीड कोड पे ये भी है, या फिर और साइट्स पे भी है, तुमको मिल जाएगा, तो इतना तो तुम लोग ईज़िली कर ही लोगे। नहीं भी होता है ना तो जस्ट एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी तुमको प्रोवाइड करवा दूँगा फ्री में। देन उन क्वेश्चंस को तो स्पेशली 1 से 2 या 3 अप्रोचेस में करना ही करना है। ठीक है, अगर तुम ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ में बैठ रहे हो और क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ में ही सिस्टम डिज़ाइन पूछी जाती है, ऑन कैंपस इंटरव्यू में अच्छी कंपनी में भी सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपको तुम ऑफ कैंपस कंपनीज में बैठ रहे हो, या फिर अगर तुम्हें लाइक अभी तुम रिसेंट ग्रेजुएट हो और अब या फिर अभी तुम वर्किंग हो कहीं पे। ठीक है, तो ऐसा है कि तुम लोगों को भी मेनली फोकस रीड कोड पर रखना है इंटरव्यूज़, क्योंकि अभी तुम्हें अभी मेन फोकस तुम्हारा इंटरव्यू पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुम्हें जस्ट कभी भी कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे। तो वहाँ तुम्हें जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना वो लीड कोड बेस्ड ही मिलेंगे। ठीक है, देन सिस्टम डिज़ाइन की बेसिक पढ़ लेना, कैसे सिस्टम डिज़ाइन होता है, कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस पढ़ लेना कि लाइक कैसे क्या होता है। वो तुमसे अगर वर्स्ट में ये पूछ लेना कि लाइक सिस्टम डिज़ाइन के बारे में तुम्हें जितना पता है तुम वो बता दो, फिर भी तुम उसको अगर ये बता देते हो कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, देन फिर तुम अपने मन से कोई एग्जांपल बता दो कि ये जैसे ये एग्जांपल है तो इसमें ऐसे ये डिज़ाइनिंग हो रही है, दैट कॉल्ड सिस्टम डिज़ाइंस। तो इम्प्रेस हो जाएगा, कुछ नाम से बेटर है कि तुम कुछ बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना, लीड कोड हार्ड क्वेश्चंस पे स्पेशली फोकस रखना, मीडियम हार्ड क्वेश्चंस पे, और जैसे ग्राफ के हो गए, डीपी के हो गए। ठीक है, एंड इफ़ यू आर एमिंग फॉर आईसीपीसी और रिसर्च रोल्स देन द स्प्लिट इज़ डिफरेंट। ठीक है, दिस इज़ वॉट कि तुम्हें इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करनी है फॉर द प्लेसमेंट्स। ठीक है, अब जो मेन तो वो था कि कोड फोर्सेस वर्सेस लीड कोड, तो तुमको पता चलेगा कि कहाँ कितना कोड फोर्सेस करना है, कितना लीड कोड करना है। ठीक है, अब तुमको अच्छे से आइडिया लग गया कि अगर तुम कॉलेज के किसी ईयर में हो या फिर रिसेंट ग्रेजुएट हो तो तुम्हें मेन फोकस कहाँ रखना है। कॉलेज की ईयर्स के लिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, रिसेंट ग्रेजुएट्स अपने या फिर जो अभी वर्किंग में है और लाइक टारगेट कर रहे हैं अच्छी एमएनसीज को, या फिर लाइक करंटली किसी स्टार्टअप में है, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मेन फोकस रखना है लीड कोड पे। ठीक है, क्योंकि लीड कोड पे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो तुमको हेल्प करेंगे तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज इंप्रूव करने में, तुम्हारी पैटर्न नॉलेज, पैटर्न जो क्वेश्चंस होते हैं पैटर्न वाइज वो तुम्हें फाइंड आउट कराने में, देन फिर तुम कैसे उनको एक्सप्लेन कर पा रहे हो इंटरव्यू में किसी कोडिंग क्वेश्चन को, वो तुम्हें वैसे भी हेल्प कराएगा। ठीक है, तो रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए यही है, और सिस्टम डिज़ाइन की बेसिक्स वगैरह भी तुमको करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है आजकल लाइक ठीक है मिड कंपनीज भी ऑफ कैंपस राउंड्स में सिस्टम डिज़ाइन बेसिक पूछ लेती है, लाइक स्पेशली फॉर लाइक स्विगी। मैंने पूरा कम्प्लीटली नहीं बताऊंगा ओपनली, लाइक स्विगी मैंने देखा था रिसेंटली, मेरे फ्रेंड से सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पूछा हुआ था, लाइक कुछ ज़्यादा अच्छा पैकेज भी नहीं था ऑनेस्टली, एस डी रोल था। ठीक है, तो बेसिक्स तो कवर करके रखो, एंड अगर तुम फैंग वगैरह टारगेट कर रहे हो, लाइक अगर तुम फैंग जैसी कंपनी टारगेट कर रहे हो एकदम टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो तुम्हें हैवी लीड कोड करना पड़ेगा, एंड तुम्हें लाइक इंटरमीडिएट कोड फोर्सेस तो मैं बोलूँगा अच्छे से, क्योंकि वो लोग भी तुम्हारी कोड फोर्सेस प्रोफाइल और लीड कोड प्रोफाइल पे रेटिंग्स वगैरह, रैंकिंग्स वगैरह वो चीज़ें करते हैं, वो देखते हैं, वो तुम डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, और अगर तुम टियर 3 से हो ना तो फिर तुम ये चीज़ें ही हैं जो तुमको थोड़ा सा वेटेज लेके आएंगी, अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा एक्सपीरियंस, तुम्हारा वर्किंग एक्सपीरियंस में अच्छा काम, या फिर तुम्हारे कोडिंग प्रोफाइल्स अच्छे, इन्हीं बेस पे तुमको रेफरल मिलने की पॉसिबिलिटी है, इन्हीं बेस पे तुमको रेज्यूमे में वेटेज, इंटरव्यू में वेटेज थोड़ा मिलेगा। ठीक है, अच्छे सर्टिफिकेशंस करना प्रोफेशनल वाले, तो दैट्स अ थिंग। अगर तुम लोग आईसीपीसी या फिर लाइक अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हो और ऐसी कुछ चीज़ें टारगेट कर रहे हो कंपटीशन साइट आईसीपीसी वाले या फिर लाइक यूसेक वाले, तो फिर तुमको हैवी कोड फोर्सेस करना पड़ेगा, कोड फोर्सेस में एकदम घुस के करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, कोड फोर्सेस में डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम का रोल बहुत कम होता है, वहाँ पे मैथमेटिक्स और इम्प्लीमेंटेशन और लाइक एल्गोरिथम्स वगैरह वही सब चीज़ ज़्यादा होती हैं। तो सिंपल है, अगर तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन और पैटर्न्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
तो लीड कोड। दैन अगर तुमको स्पीडली करना है, कॉन्टेस्ट माइंड से अंडर प्रेशर वाली चीज़ करनी है, दैन कोड फोर्स। ठीक है। वीकली टेम्पलेट कुछ ऐसा होगा कि लाइक 6 से 8 घंटे, अगर ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लाइक कॉलेज में भी है या फिर लाइक ऑफिस में भी है, तो पूरा टाइम तो ऑफिस में निकल ही जाता है। एक लाइव राउंड होता है कोड फोर्सेस का, जो कि शाम को होता है। कोई इशू नहीं है, कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट हमेशा रात को होता है। जस्ट यू कैन अटेम्प्ट वेदर यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट और यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल। देन कुछ क्वेश्चन, ये हार्डली तुम्हारा 3 से 3.5 घंटे लेगा। अगर तुम क्वेश्चन लाइव राउंड अटेम्प्ट कर लेते हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन कर पाते हो, उसके बाद देन तुम अगर 2 प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा भी सॉल्व करोगे तो भी ठीक है। लीड कोड में 10 से 15 फोकस प्रॉब्लम करनी है और 2 टाइम सेट करना है पूरे। ठीक है, जिसमें 3 से 3.5 या फिर 4 घंटे के लिए समथिंग कुछ कर सकते हो। इतना इनफ होता है एक पर डे के लिए। और हाँ, जो भी है मिस्टेक वगैरह जो भी तुम्हें हो रही है वो नोटबुक में लिखते हुए चलना। एंड देन अगले दिन स्टार्ट करने से पहले उसको सॉल्व करके देन फिर स्टार्ट करना दूसरा दिन। ठीक है, वरना फिर वो लिखी हुई रह जाएंगी। अब ये जो मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली लोग कर देते हैं, ठीक है, दैट्स अ कॉमन पिटफॉल्स, दैट माइंडलेस ग्राइंड। ठीक है, कोई आइडिया नहीं होता कि कहीं से भी कुछ भी करना शुरू कर देना है। मेरे दोस्त ने कोड फोर्सेस शुरू किया है, उसने कोई शीट सोल्व कर दी कोड फोर्सेस पे, तो मैं भी कर रहा हूँ। मेरे दोस्त ने लीड कोड पे कोई शीट सोल्व कर दी तो मैं भी कर रहा हूँ। ये चीज़ नहीं करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस चीज़ के लिए कितना कर रहे हो। एक, जब तक तुम्हारे पास रोड मैप नहीं होगा ना प्रॉपर, ठीक है, रोड मैप इन द सेंस मैं उस रोड मैप की बात नहीं कर रहा जो नॉर्मली साइट्स पे अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस चीज़ के लिए करना है और कितना करना है। ठीक है, तो मेरे पास जब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी तब तक तुम बेकार है कुछ भी करना। तुम लाइक करोगे तो सही, लेकिन उसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है। स्किपिंग अप सॉल्व, जो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि कॉन्टेस्ट वगैरह एंड हो जाता है तो फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, जो प्रॉब्लम रह गई है। ठीक है, वो सॉल्व करनी है तुम्हें, सो दैट कि तुम्हें हेल्प मिले, तुम्हें पता चले कि अगले कोड फोर्सेस राउंड में या फिर लीड कोड राउंड में क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी अब वो क्वेश्चंस करोगे। लाइक ऐसा मान लो कि तुम्हें वो क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने ही है सारे के सारे, चाहे फिर वो जब तक लाइव है तब तक कर रहे हो या फिर लाइव खत्म हो गया उसके बाद कर रहे हो। दैन फिर इग्नोरिंग एडिटोरियल्स, भाई ये चीज़ें मत करना। अगर तुम सीखने वाले फेस में हो ना, या फिर सीखने वाले फेस में नहीं भी हो तो भी एडिटोरियल्स तो देखना, तुम्हें बहुत कुछ नया मिलेगा। सपोज करो कि तुम कोई एक चीज़ ढूंढने के लिए या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एडिटोरियल ओपन किया, और तुमको उस एडिटोरियल में किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर या टॉपिक के ऊपर और 4 नई चीज़ें मिल गई जो तुमको हेल्प करेंगी उसी टॉपिक की। तो इसीलिए एडिटोरियल्स को मिस मत करना। मे बी तुम्हें वहाँ पे और भी अच्छी अप्रोचेस मिल जाए, जो तुम सोच रहे हो उससे बेटर मिल जाए। ठीक है। एंड ऑन साइट टनल विजन मतलब क्रॉस ट्रेनिंग ट्रांसफर आइडियाज़, भाई ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत करना। क्रॉस ट्रेनिंग ट्रांसफर आइडियाज़ मतलब बेसिकली इतना मान लो कि लाइक अपने माइंड को डाइवर्ट मत करना। तुम जो कर रहे हो ना, ये नहीं कि मेरा दोस्त तो इतना कर चुका और मैं तो इतने पे ही हूँ, मत करना भाई। सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, कौन कैसे कर रहा है क्वालिटी भी डिपेंड करती है। ठीक है, तुम अपने हिसाब से करो, उसका अपने हिसाब से करो। तुम भागा दौड़ी करके जाओगे ना कि तो पता चल रहा है तुम आ, कर तो रहे हो एडवांस चीज़ें, लेकिन तुम्हें बेसिक चीज़ें भी नहीं पता, और इंटरव्यू ने अगर बेसिक पूछ लिया ना तो फिर ठन हो जाएगा, वो तुमसे कभी भी एडवांस नहीं पूछेगा फिर। बॉटम लाइन है कि कोड फोर्सेस इज फॉर द फास्ट थिंकर्स, इज हेल्प यू टू थिंकिंग द फास्ट थिंग, फास्ट लाइक थिंकिंग, फास्ट अप्रोचिंग एंड अंडर प्रेशर टाइमिंग्स में काम करना, एंड देन ऑप्टिमल काम करना। एंड लीड कोड हेल्प यू टू रिलायबल एंड फॉर इंटरव्यूअर्स। ठीक है। सो कोड फोर्सेस स्टार्ट करने के लिए मैंने इसलिए बोला था, सो दैट कि जब तुम्हारे इंटरव्यूज़ का पास आ रहे हैं ना, तो फिर उस टाइम पे तुम मेनली फोकस लीड कोड पे कर पाओ। तो इसलिए सेकंड ईयर जो मेरे को लगता है ना कि लाइक बेस्ट टाइम फॉर स्टार्टिंग द कोड फोर्सेस। ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर फ्रॉम माई साइड। जितना मुझे लग रहा था, जितना मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था इस टॉपिक के ऊपर, जो उतना मैंने कर दिया। और बॉटम लाइन्स वगैरह भी सारी चीज़ें बता दी जितना मुझे लग रहा था। ठीक है। सो कोड फोर्सेस के और लीड कोड के बारे में आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सो इफ़ दिस डिटेल्ड वीडियो सेव्ड योर टाइम, सो ड्रॉप अ लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टेल मी इन द कमेंट्स लाइक जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जिस भी टॉपिक पे तुम वीडियो चाहते हो, इस टॉपिक में किसी और चीज़ के ऊपर तुम्हें कोई डिस्कशन करना है, जस्ट एक बार लिख दो मेरे को। मैं कैसे भी करके आपसे कनेक्ट करूँगा, या फिर लाइक कुछ भी वीडियो बना के लेके आऊँगा पूरे टॉपिक के ऊपर, देन कुछ भी मैं करूँगा। ठीक है, एंड ऑल आर द फ्री ऑफ दिस चैनल। ठीक है। कुछ लाइक चीज़ें हैं जो मैं तुमको बताऊंगा अपने अगले वीडियोस में, स्पेशली फॉर द ट्रिक्स कि इंटरव्यूज़ में कैसे कोडिंग क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। ठीक है, ओएस में कैसे टैकल किया जाता है, कैसे तुमको एक्सप्लेन करना है। तो उन सारी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे यार। अभी अभी तो शुरुआत हुई है। सो यार दैट्स इट फ्रॉम माई साइड द टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।